Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just give me 1 minute. Let me just turn off my fan. Okay. So I think in last lecture I have just introduced this second theorem, okay, which is Stokes theorem. And only one topic is remaining, which is Gauss divergence theorem. Okay. So I will again explain quickly. और जितना मैं ले रहा हूँ that much content I have to prepare for the ET examination. Okay, as you all know that there is more weightage for this 6th unit. Okay, yeah. So what is Green's theorem? First, remember Green's theorem is only for a two-dimensional vector, and it gives a relation between your line integral and surface integral. So the integral f bar dot dr bar is equal to surface integral over s dab by dab x minus dab by dab by dx dy. Okay, so this is your surface integral. This is the relation between line integral and surface integral. Then we have already completed some examples on this part. Okay, m क्या होता है, n क्या होता है, वो proper calculate करना है. Then dx dy, double integral dx dy is nothing but area. You have to remember that result also. And the similar types of question we have already completed in our last lecture. Okay, you can go through that session one more time if you want. Okay, so हाँ, तो एक जगह पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको वो डबल इंटीग्रल सॉल्व ही करना है ना, तो डबल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपको उस रीजन में, ओके, इन दैट रीजन आइदर यू हैव टू कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. ठीक है, सो मोस्टली यू कैन ट्राई विद वर्टिकल स्ट्रिप. सो व्हेन यू टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप इन दैट रीजन, so it means you are going to integrate first with respect to y and then with respect to x. So when you consider a vertical strip in that region, find limits of y at the end of this strip and then move this strip from left to right where we need to find x, and accordingly you have to write down those limits. Okay, I think this part is already there in your multivariate calculus course. Okay, so now with this let me continue our last discussion, which is Stokes theorem. Okay, so what is Stokes theorem? Let f bar be any vector. So it may be two-dimensional vector, it may be three-dimensional vector. S is the open surface bounded by a curve. Then the line integral f bar dot dr bar is equal to del cross f bar dot ds bar. Okay, और del cross f bar dot n cap into ds. और n cap कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए भी मैंने रिजल्ट्स आपको दिए थे. If your surface is parallel to xy plane, what is your n cap? If your surface parallel to xy plane, what is your n cap? n cap क्या, हाँ, n cap क्या होता है? नॉर्मल. तो xy plane को क्या नॉर्मल होता है? Yes, z axis. That is nothing but k bar. Okay, आपको z में नहीं लिखना है, आपको i, j और k में लिखना है वो part. So that is nothing but k bar. So accordingly you can find the normal vectors for the remaining two surfaces x, y, y, z and x, z. At least इन तीनों केस में आप वो n cap याद रखो. और ds क्या होता है? कौन से सरफेस को नॉर्मल ले रहे हो? xy को नॉर्मल ले तो ds बन जाएगा dx dy. yz को नॉर्मल ले रहे हो तो ds बन जाएगा dy dz, like that. Okay, so but most of the questions are on this definition only. Okay, इसलिए ये definition आप अच्छे से prepare करो. Like this is your first question. Use Stokes theorem and calculate this line integral. But so from line integral you can find your f bar. So using Stokes theorem that line integral is equal to surface integral of del cross f bar. Okay, तो as it is. तो ये बस 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें बस मुझे थ्योरम यूज करना और f bar की वैल्यू पुट करनी है, आगे सॉल्व करना भी नहीं है. ठीक है, सो ये इनिशियल कुछ एग्जांपल्स थे एंड आई थिंक या सो दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी एक्चुअली फाइंड वेयर वी एक्चुअली सॉल्व दैट इंटीग्रल. ओके, तो यहाँ पे भी f बार की वन है, स्टोक थ्योरम का यूज करके लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट डेल क्रॉस f बार डॉट ds बार. f बार आपके पास है, यू कैन फाइंड डेल क्रॉस f बार, सो दैट वैल्यू इज j बार प्लस 2x माइनस 2y k बार. और जब आप ये वर्टाइसेस देखते हो, ये आपका रीजन है ना. सो व्हाट इज आवर रीजन? इट इज द एरिया of triangle formed by these three vertices. So yeah, so if you observe these vertices carefully, here you can see in all these three vertices the z coordinate is 0. Okay, so this z coordinate is 0. So since z coordinate is 0, so this triangle lie on xy plane, है ना.
सो तो बेसिकली आपका अभी रीजन कहाँ पे, योर रीजन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर योर यूनिट, देयरफॉर योर नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज नथिंग बट एन कैप इज इक्वल टू के बार। ओके, सो और आप एक्स वाई प्लेन में हो तो यहीं पे आप लिख सकते हो व्हाट इज योर डीएस, सो योर डीएस इज डीएक्स डी वाई। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, कि जिस सरफेस को आप नॉर्मल लेते हो वो होता है एन कैप और वो सरफेस आपका बनता है डीएस, दैट सरफेस बिकम डीएस। और ओके, so del cross f bar dot ds bar, but ds bar is nothing but dot n cap into ds. Okay, n cap is k bar, del cross f bar आपने already calculate किया था, and ds is dx dy. So when you take this dot product, you will get 2x 2y only, and this dx dy is as it is. ठीक है, तो इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना था। ओके, तो इसलिए you can consider up to this part only. ठीक है, now let me continue from this. इसके आगे की क्वेश्चन लेता हूं। या ग्रेन्स के हो गए सारे। ओके, डेल क्रॉस एफ बार के, हाँ, सो लेट मी टेक दिस, इसको मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। या दिस इज द क्वेश्चन, now you tell me what we can do in this question. Yes, so let me read it properly. So use Stokes theorem and calculate this surface integral. ये उनका क्वेश्चन है। So can anyone tell me what is Stokes theorem? Can anyone tell me what is Stokes theorem? बोलो। What is Stokes theorem? The line integral over curve C f bar dot dr bar is equal to what? Surface integral over S, yes, del cross f bar dot ds bar. Okay, and ds bar की वैल्यू भी याद रखो, ds bar is nothing but यानी क्या ds, यानी क्या ds. Okay, when required we use. हाँ, अभी उन्होंने क्या बोला कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये उनका क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट, द इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, या ऑलरेडी मैंने यही पे मैं कंसीडर करता हूँ। ओके, शायद आपके पास वही ऑप्शन है। ओके, सो इन एवरी ऑप्शन लाइन इंटीग्रल इज गिवन। ओके, बट बस उन्होंने क्या किया है, सी को चेंज किया है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज कर्व सी? एस इज द सरफेस अबोव द एक्स इक्वल टू 0। हाँ, अबोव द एक्स इज इक्वल टू 0, अबोव द प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0। अबोव द प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? वाई जेड प्लेन। ठीक है, सो दिस गिवन सरफेस इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, करेक्ट ना? सो इफ इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इन दैट सरफेस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0। सो इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट यू गेट हियर? बोलो क्या मिलेगा? इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 0, 4y square plus z square equals to 4. Z square is equal to 4. If I divide this by 4, you will get y square plus z square by 4 is equal to 1. So this is our curve C. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बस कर्व C कैसे आइडेंटिफाई किया है, ओके, वो आपको देखना है। ठीक है, इतना बस याद रखो, स्टोक्स थ्योरम में कर्व सी जो होगा, ओके, दैट विल बी इन 2 डायमेंशन। ओके, वो 2 डायमेंशन का ही होगा, इतना बस आप याद रखो। ठीक है, 3 डायमेंशन में वो कभी नहीं आने वाला, बिकॉज नाउ वी आर इन सिंगल इंटीग्रल, तो वो 2 डायमेंशन का ही होगा। ओके,
डबल इंटीग्रल में 3 डायमेंशन का होता है, सी के मतलब कर्व सी होगी वो 2 वेरिएबल की होगी, एस जो होगा वो 3 वेरिएबल का होगा, इतना बस आप याद रखो। तो फिर आप वहां पे मतलब एक लॉजिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थ्योरम मतलब क्वेश्चन ऐसे था, बस आपको कर्व सी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक सम से दैट सेम क्वेश्चन इज देयर, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर कर्व सी। इसलिए आपको मैंने बोला था एक्चुअल थ्योरम पे आपको क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर रहेंगे, डायरेक्टली थ्योरम के एप्लीकेशन या सॉल्व करने के लिए नहीं रहेगा। यस, सो सेम क्वेश्चन इज देयर, सो दैट सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार ओवर कर्व सी। सो व्हाट इज दैट कर्व सी? तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, एस इज द सरफेस अबव द प्लेन जेड इक्वल टू 0। बोलो x square. above the plane z equal to 0, z equal to 0 means which plane? X XY. हाँ sorry correct, हाँ xy plane above the z equal to 0 plane means what? Given surface parallel to this yz plane, sorry xy plane, therefore z इज इक्वल टू 0। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो भी होगा ना दैट विल बी योर कर्व सी, ठीक है। इतना ये भी लॉजिक आप यूज करके जा सकते हो, ओके। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपकी कर्व सी आती है। सो जस्ट पुट z इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ सरफेस, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 यू विल गेट x स्क्वायर बाय 4 plus y square equal to 1. This is your curve C. So which option is correct? Option 1. ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, जब आप कर्व C कैलकुलेट करते हो, रिमेंबर माय स्टेटमेंट, जब आप कर्व C कैलकुलेट करते हो दैट मस्ट बी इन 2 वेरिएबल, वो 2 वेरिएबल में ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट अगर सिमिलर है तो दैट आई विल स्किप। सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैलकुलेट करके बोलो और मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। पुट y इक्वल टू 0 बेसिकली, इफ आई पुट y इक्वल टू 0 यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी Option B. x स्क्वायर बाय 4 एंड z स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? It is f bar dot dr bar which is equal to del cross f bar. So which option is correct? Option B. Option B. Very good. Okay, यहाँ पे db लिखा है हाँ C में. Good. Next यहाँ पे ds bar होगा, so this is one correction that I will do. Yeah. Using Stokes theorem, which option is correct? बोलो. C. C. Good. What about this? 21. D. Option. Option D. Okay. ठीक है, ये तो हमने शायद ले लिया था। या ये लेता हूँ मैं। See, there are many questions on this last unit, हाँ, तो यही questions में ही मैं चेंजेस करके आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सो एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज कहीं पे भी नहीं है। या नाउ टेल मी, सो यूज स्टोक थ्योरम एंड कैलकुलेट दिस लाइन इंटीग्रल व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? व्हिच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस एफ बार इनटू ds bar. Okay, done. So what is my f bar here? F bar is equal to xy into I bar plus yz into j bar. यहाँ पे रह गया है तो वो करेक्शन होके ही आएगा आपको। ओके, सो कैन यू टेल मी डेल क्रॉस f bar क्या है फॉर्मूला डेल क्रॉस f bar का? व्हाट इज इन फर्स्ट रो? IJK. हाँ, IJK then dabba by dabba x
डैबा बाय डैबा वाई, डैबा बाय डैबा जेड, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर. ओके, एंड नाउ इफ आई कंप्लीट दिस, so I bar in bracket with respect to y is 0 minus with respect to z is y minus j bar. मेरा कैलकुलेशन चेक करो. with respect to x is 0, with respect to z is 0, and with respect to k, with respect to x is 0, with respect to y is minus y. so करेक्ट है क्या ये? minus I times y minus k times y. करेक्ट है ये? देखो. यस, लास्ट वाले में माइनस एक्स. क्या हो गया था यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई ना, एक्स रह गया, सॉरी. नाउ चेक, इज इट करेक्ट नाउ? इज दिस करेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई इज ओके. नाउ इट लुक करेक्ट. ओके, ठीक है, डन. तो अभी आगे का रेडी करते हैं. क्या दिया है? over the cube whose side is a and its face is its face in xy plane. okay, तो वो जो फेस मतलब जो ओपन पार्ट है वो ओपन पार्ट आपका xy प्लेन ही है. ओके, सो यू कैन से हियर दिस फेस ओपन सरफेस is parallel to xy plane. ओके, सो क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है वो, सो इफ इट इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन कैप? के बार, करेक्ट. एंड व्हाट इज टीएस? टीएस इज dx dy. ये हमेशा गिवन होगा कि कौन से प्लेन को वो पैरेलल है. इज अ मिसिंग सरफेस मतलब वो ओपन है. ठीक है, सो इट इज सो दैट विल बी, दैट पार्ट इज ऑलवेज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, सो लेट मी कंटिन्यू दिस नाउ. सो डेल क्रॉस एफ आर डॉट ds बार. सो देयरफॉर हमने ऑलरेडी इससे स्टार्ट किया था, डेल क्रॉस एफ बार डॉट ds बार, बट ds बार आपको पता ही है. तो डेल क्रॉस एफ बार दैट वी नो इज माइनस आई बार वाई माइनस के बार एक्स डॉट प्रोडक्ट विद ds बार की वैल्यू हमेशा याद रखो n कैप इनटू ds. नाउ लेट मी पुट दैट वैल्यू over a surface minus I times this minus k bar times x and n cap आपका क्या है k bar and ds क्या आपका dx dy. इस दोनों में डॉट नहीं है. yes, so what is the dot product of this? what is the dot product of this? इन दोनों में -1 हाँ क्या आएगा वो? -x. माइनस एक्स. गुड. सो माइनस एक्स क्योंकि k का ही कोएफिशिएंट रहेगा into dx dy. so which option is correct? हाँ, उसके आगे लिमिट्स भी दिए थे. ओके, लिमिट्स मतलब x एंड y के लिमिट्स. तो क्यूब की लेंथ क्या है? a है ना. सारे x एंड x y z सबकी लेंथ क्या है? a. so what? your x vary from okay 0 to a. हाँ, so cube has a length a, so this implies your x vary from 0 to a, y also vary from 0 to a, so it look like this 0 to a, 0 to a minus x dx dy. वो चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन था, तो लिमिट नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, है ना. ये भी स्मार्टली आपको देखना है, ऐसे ही रहेगा वहां पे. अगर मैं डिफिकल्ट लिमिट भी देता हूं, बट नो नीड टू कैलकुलेट दोज लिमिट्स एज देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद माइनस एक्स, है ना. तो अदर ऑप्शन वैसे भी डिलीट हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट या लेट मी टेक दिस नाउ. स्टोक के ज्यादा क्वेश्चन है. यस, हाँ, यूज स्टोक्स थ्योरम ओवर स्क्वायर विद वर्टाइसेस दिस. स्क्वायर विद वर्टाइसेस दिस इज इक्वल टू अभी सारे ऑप्शन में dx dy. ठीक है, चलो मैं नहीं कैलकुलेट करा, अभी ड्रॉ करके मुझे समझ में आ ही जाता, बट सारे ऑप्शन में dx dy. तो सरफेस क्या होगा? मतलब दैट सरफेस s इज पैरेलल टू व्हाट? xy. xy प्लेन ही होगा.
ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में dx dy है, ठीक है, तो इसलिए n कैप आपका क्या होगा, k बार ही होगा, ठीक है। चलो ये मैंने ऑप्शन से लिखा है, ओके। क्योंकि अभी मैं फर्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना है उस हिसाब से सोचता हूँ। नाउ आई नो दैट बाय स्टोक्स थ्योरम दिस लाइन इंटीग्रल f bar dot dr bar is equal to surface integral del cross f bar dot ds bar. Now let me calculate del cross f bar. So del cross f bar is equal to I j k dabba by dabba x dabba by dabba y dabba by dabba z। बोलो, अब ये 2 डायमेंशन का ही है वैसे, है ना, 2 डायमेंशन का ही है ना। सो क्या करना होगा 2 डायमेंशन में मुझे, आई डोंट नीड टू कंसिडर दिस, नहीं ना, वो लेना ही पड़ेगा ना, एक मिनट, हाँ, क्योंकि वो डबल इंटीग्रल है, ठीक है, ठीक है, लेट मी डू इट, हाँ, ओके। बोलो आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई, ओके, जे बार का कोएफिशिएंट एक्स वाई स्क्वायर एंड के बार है ही नहीं, let me write it 0, okay। now solve this, क्या मिल रहा है, i bar in bracket 0 minus j bar in bracket 0 plus k bar in bracket y square minus x, ठीक है, करेक्ट ना। Yes, sir. Now write down this. So it is equal to double integral over a surface S, ये वैल्यू आ रही है k बार into y square minus x डॉट प्रोडक्ट विद ds बार की वैल्यू क्या आती है, n कैप into ds। बट मैंने आपको पहले बोला था कि ऑप्शन में ही देखो, वो डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट मत करो, ऑप्शन में सारे dx dy गिवन है, तो वो सरफेस आपका xy प्लेन ही है, तो n कैप आपका k बार बन जाता है डायरेक्टली। So it is equal to over S. So let me write it first. So k bar y square minus x dot product with n cap is k bar, okay, dx dy. So what is their dot product? Y square minus x and dx dy. So which option is correct? Which option is correct? Option A, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करके भी अगर देख लेते हैं ना तो समझ में आ जाता, वो क्या है, वो 1 0 ये पॉइंट है, नेक्स्ट इज -1 0, उन्होंने देते समय एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही दिया है, सो एक्चुअली वो करने की भी जरूरत नहीं थी, एक्स वाई प्लेन पे ही दिया है, 2 ही वेरिएबल दिए, मतलब एक्स एंड वाई की ही डायग्राम है, सो ऑलरेडी वी आर ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स है ना, जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं है, सो इट इज बाय डिफॉल्ट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। नेक्स्ट ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया ऑलरेडी, ठीक है, सेम है, देखो आप एक क्वेश्चन मैंने ले लिया साइड ए का, तो सेम लॉजिक का एक क्वेश्चन है, सो दैट आई विल स्किप नाउ, हाँ, सेम लॉजिक के 3 क्वेश्चंस थे। नाउ आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स थ्योरम। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने लिया था, ये साइड का, तो गो थ्रू इट प्रॉपरली, ठीक है। सर उसमें लिमिट्स अगर निकालने तो कैसे निकालेंगे, एक बार रिपीट कीजिए। इस केस में ना, यस सर, हाँ, तो उस केस में ना सी ये एक्चुअली पूरा आपका मल्टीपल इंटीग्रल का पार्ट है, बट हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर आपको मल्टीपल इंटीग्रल में नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आल्सो। बट आप लिमिट्स कैलकुलेट कैसे करते हो, आप लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हो, एक्स वाई प्लेन में आपके पास जो सरफेस आता है, जो रीजन आता है, उसमें आप एक वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो, ओके, एंड वहां से फिर आपको लिमिट समझ में आते हैं। अब इस केस में आप देखो एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, क्यूब की इमेज क्या रहेगी एक्स वाई प्लेन पे, क्यूब आपने जो लिया है उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, एक स्क्वायर होगा ना, यस सर, हाँ, स्क्वायर दिखाई देगा ना, तो उस स्क्वायर में अगर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते भी हो, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या है, 0 to a 0 to a, यस सर, हाँ, इसलिए लिमिट्स वैसे आ रहे हैं।
बट क्यूब के केस में, क्यूब का एग्जांपल मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि क्यूब के केस में आपको दिखाई देता है, अरे क्यूब है मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तो नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली। बट एक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर कहीं पे दिया था आपको जहां पे आप वो लिमिट्स प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन था, तो वो एक्स वाई प्लेन का रीजन मैंने ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x, उस रीजन में मैंने x स्ट्रिप ली एंड वहां से मुझे लिमिट्स मिल रहे हैं। विल ट्राई टू अवॉइड दिस पार्ट, मतलब ज्यादातर केस में रेडीमेड मिल जाए ऐसे हम आपको देंगे, सो दैट वो, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, सो दैट वी कैन नॉट फिट फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अगर ये थ्योरी बेस्ड जाना पड़ता ना तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फिर इन डिटेल नॉलेज चाहिए डबल इंटीग्रल का, ठीक है। इसलिए आप देखो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही हम दे रहे हैं कि जिसमें ज्यादा आपको इन डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट बिकम अ डिफरेंट क्वेश्चन देयर, ओके। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100%, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज चाहिए, जितना मैं ले रहा हूं लेक्चर में उतना तो आप प्रिपेयर करके रखो, ओके। Yes? Yes, sir. Yeah, now let me take that last theorem. अगर आपको देखना है ना तो आप इसके एक थियरी एग्जांपल देखो, जिसमें प्रॉपर ओके ये ओपन सरफेस देखो, जो अभी मैं बोल रहा था, ये डायग्राम ड्रॉ करते हो, सो दिस इज योर ओपन सरफेस, ये उसकी कर्व सी होती है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल इस पे रहता है, इस कर्व पे रहता है, इस कर्व पे लाइन इंटीग्रल रहता है, और सरफेस ये होता है जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है रिमेनिंग पार्ट, तो ये दोनों में रिलेशन है। दिस इज दिस स्टोक्स थ्योरम एक्चुअली, ओके। थ्योरेटिकली ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड एंड एमसीक्यू कंसर्न की वजह से मैं इतना थ्योरेटिकली नहीं जा रहा हूँ। तो ये वेरीफाई का क्वेश्चन है, मतलब आप एक्चुअली लाइन इंटीग्रल भी कैलकुलेट करते हो, आप सरफेस इंटीग्रल भी कैलकुलेट करते हो, देन वी चेक वेदर दिस टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। तो जो एमसीक्यूज है उसके ही ऊपर ये थियरी क्वेश्चन है। Now we'll switch to the triple integral. Okay, ठीक है। Now last theorem is Gauss divergence theorem, ठीक है। So what is that? What is this theorem? Let f bar be any vector, V is the volume enclosed by a surface S. इसमें लाइन इंटीग्रल का कोई रोल नहीं है, ओके। आपके पास एक सरफेस है, लेट मी कंसीडर सिलेंडर, ठीक है, ओके। इसको जो बाउंड्री है दैट विल बी माय सरफेस एस, इसके अंदर जो वॉल्यूम है दैट इज V, ठीक है। सो नाउ सरफेस मतलब डबल इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम इज ट्रिपल इंटीग्रल, एंड कर्व इज सिंगल इंटीग्रल। समझ में आ रहा नहीं है लॉजिक अभी आपको? कर्व अगर मैं कंसीडर करता हूं तो हमेशा सिंगल इंटीग्रल पे ही लेता हूं, सरफेस कंसीडर करता हूं तो डबल इंटीग्रल पे लेता हूं, और जब मैं वॉल्यूम कंसीडर करूंगा देन आई विल कंसीडर इट ऑन ट्रिपल इंटीग्रल। क्लियर? ये डायमेंशन के हिसाब से जाता है, कर्व है सो 2 डायमेंशन, सरफेस है तो 3 डायमेंशन, वॉल्यूम है तो 4 डायमेंशन, ओके। डोंट कंपेयर विद द इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल इट डजंट मीन यू आर इन 1 डायमेंशन, करेक्ट ना? Yes or no? Yes or no? अरे मुझे ये बोलो, डबल इंटीग्रल dx dy क्या होता है? ये डबल इंटीग्रल सॉरी dx dy ने f ऑफ एक्स वाई dx dy क्या होता है ये? हाँ, व्हाट इज डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई dx dy इन जनरल? एरिया। फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी आप बोलोगे करेक्टली विच इज रॉन्ग का जो आपने आंसर दिया था। नाउ यू टेल मी व्हाट इज सिंगल इंटीग्रल f ऑफ x dx इन जनरल, क्या होता है ये? एरिया। एरिया, करेक्ट ना? ये पता था आपको? कैसे? क्योंकि आप ये कर्व ड्रॉ करते हो समवेयर लाइक दिस, उसके नीचे जो भी एरिया मिलता है दैट बिकम अ लाइन इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल। तो अभी सेम लॉजिक से अगर आप कंपेयर करते हो, व्हाट
व्हाट इज दिस, एरिया होगा क्या ये कभी? आप एफ ऑफ एक्स वाई 1 लेके फिर इसको एरिया में कन्वर्ट करते हो. एक्चुअली इन जनरल डबल इंटीग्रल इज द वॉल्यूम. व्हाई इट इज वॉल्यूम? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज वॉल्यूम? जब आप एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करते हो, आप कैसे ड्रॉ करते हो? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेकर ड्रॉ करते हो ना, ऐसा और नो? यस सर. हाँ, जब आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हो तब आप 2 डायमेंशन में आते हो, 3 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में आते हो? 2 डायमेंशन में जाते हो. तो जब आपको एफ ऑफ एक्स वाई प्लॉट करना है, आपको कैसे लिखना होगा? z इक्वल टू ना. Yes, sir. तो आप इस केस में कहां पे जा रहे हो? 3 डायमेंशन में. जब आप 3 डायमेंशन में जाते हो, इन दैट केस ओके यस यस ओके जस्ट 1 मिनट है. ओके सो yeah, so here single integral is always gives you area, double integral always gives you volume, and triple integral always gives you volume in 4 dimension. ठीक है, तो इंटीग्रल से कंपेयर मत करो. जब सिंगल होता है आप 2 डायमेंशन में रहते हो, डबल होता है आप 3 डायमेंशन में जाते हो, ट्रिपल होता है आप 4 डायमेंशन में जाते हो. ठीक है, ओके यस. तो इसलिए यहाँ पे ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये एक्चुअली 3 डायमेंशन का है, ये एक्चुअली 4 डायमेंशन का है. ओके, सो लेट ए बार बी अ वेक्टर, दिस इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस S, देन यू विल गेट दिस. ठीक है, ओके. सो क्या है वो? एफ बार डॉट डी एस बार. सो सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल. सो इट इज इक्वल टू डेल डॉट एफ बार डी वी. सो कैन यू टेल मी what happen if my f bar is solenoidal vector field? What is, if f bar is a solenoidal vector field, what is the surface integral of that f bar? If it is solenoidal vector field, what is the surface integral of f bar? 0. 0, because we know that if it is solenoidal vector field, then del dot f bar is always 0. ठीक है, ये 1 मार्क के लिए रिजल्ट होगा आपको एग्जाम में. ओके, वो दिया है मैंने. then it is always 0. okay, yeah, so let me explain here now on our worksheet. Yeah, so now this is the last topic. So last theorem is Gauss divergence theorem. So what is this theorem? Let f bar be any vector field and S is the surface bounded by volume V, then what? Then the surface integral over S f bar dot ds bar is equal to the volume integral over V del dot f bar into dv. okay, del dot f bar into dv. ठीक है, क्योंकि ये स्केलर होता है इसलिए इन बिटवीन डॉट नहीं आएगा. ओके, दिस इज द रिजल्ट समझ में आ गया. सो इस केस में अगर डायग्रामेटिकली दिखाना भी है ना, सो इफ दिस इज योर रीजन, ओके, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है दैट विल बी V, और जो सरफेस है इसका दैट विल बी S. तो ये उन दोनों में रिलेशन होता है. ठीक है, नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस. First, example, use Gauss divergence theorem. Okay, where f bar is this, S is the closed surface is equal to. Okay, so by Gauss divergence theorem, so this surface integral over S f bar dot ds bar, उन्होंने यहाँ क्या ds लिखा है क्योंकि ds bar की वैल्यू वही आती है. इट इज इक्वल टू
triple integral over v del dot f bar into dv. So what is f bar here? Can anyone tell me what is f bar here? It is given in the question, so I will not write it again. So can you tell me what is del dot f bar? F bar is here. What is del dot f bar? क्या होता है del dot f bar? बोलो. What is del dot f bar? Del by del x of f1. Dabba f1 by dabba x plus dabba f2 by dabba y plus dabba f3 by dabba z. So f1 का with respect to x क्या है? 2y. 2y. With respect f2 का with respect to y is 2y. f3 का with respect to z है ही नहीं तो 0. Done. क्या कुछ तो रॉन्ग हो गया क्या? Okay, correct ना. So it is which is equal to 4y. So therefore this value is equal to triple integral over v 4y dv. मैंने आपको पहले बोला कि आपको बस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. डन. क्लियर? पहला क्वेश्चन yes or no? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेता हूं. ये इसी सेक्शन में ही जाएगा. ओके. So the same question is there. Can you tell me? It is equal to triple integral over v del dot f bar into dv. So what is del dot f bar here? f1 का with respect to x. बोलो. 2. 2y. f2 का with respect to y. Minus 2y. With respect to z है ही नहीं तो 0. Okay, so your answer is 0. 0. सेम टाइप के क्वेश्चंस है. ठीक है, लेट मी गिव दिस. यही होगा, आपको बस मैं वैल्यू चेंज करके दूंगा एफ बार की, बट आइडिया वही है. सो अगेन हियर इट इज इक्वल टू ट्रिपल ओवर वी डेल डॉट एफ बार इंटू डी वी. ये डॉट नहीं लिखना है. हाँ, सो व्हाट इज डेल डॉट एफ बार with respect to x is 0, with respect to y is 0, with respect to z is 2z. So which option is correct? C. Correct बोला था आपने. ठीक है, that is 2z dv. Next, now can you tell me directly here? Can you tell me f1 का with respect to x 1, with respect to y 1, with respect to z 2z. So option A is correct. ठीक है. Next, can you tell me directly f1 का with respect to x 1, 1. f2 का 0, f3 का with respect to z 2y 1 plus 2y. So option B. B. ठीक है. नेक्स्ट बोलो f1 का विद रिस्पेक्ट टू x 4z. हाँ, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y प्लस xz स्क्वायर. तो ऑप्शन ये तो कभी नहीं आएगा. एंड विद रिस्पेक्ट टू z इज 3. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? B. B. नेक्स्ट f1 का विद रिस्पेक्ट टू x 2y, विद रिस्पेक्ट टू y 0 एंड यहाँ पे माइनस y. सो y. तो ऑप्शन D. D. You tell me now which option is correct. f1 का with respect to x is 1. 1. f2 का f2 का 0. 0. f3 is Minus 2y. minus 2y. So which option is correct? C. ठीक है. x 36. f1 with respect to x is 8x, with respect to y is minus z. So I think option A ना? Correct?
Yes. Next, let me take this. I don't know, इसमें कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज के ही या नहीं पता। Okay. ठीक है, या यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड या सो व्हाट इज गिवन डबल इंटीग्रल ओवर एस आर बार अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आप ds होता है ds बार डॉट ds बार। ओके, सो हियर आई नो दैट f बार इज दिस बाय स्टोक्स थ्योरम। This value is equal to, so double integral over s r bar upon r square ds bar is equal to triple over v del dot f bar into into 503 में जब 503 हाँ, so del dot f bar into what dv, ठीक है। so yeah, so let me continue after this. So it is equal to, so triple integral over v del dot, okay, r bar upon r square into dv। शायद आपको अभी ये टॉपिक इसके आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, ये हुआ है आपका। हाँ, तो बेसिकली आपको करना क्या है, डेल के साथ आर बार अपॉन आर स्क्वायर की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल डॉट फाई यू बार? कोई बोल सकता है क्या इसका फॉर्मूला क्या है, डेल डॉट फाई यू बार? ओके, नहीं है, नहीं, आपको ये सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। ये नहीं हुआ ना, क्योंकि ये वेक्टर आइडेंटिटीज का पार्ट है, सो यू कैन स्किप दिस नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। लेट मी इरेज दिस एवरीथिंग, क्योंकि आपको डेरिवेटिव क्या पार्ट है, ये अदर ब्रांचेस के कुछ क्वेश्चंस है, ये पार्ट आपको नहीं है सिलेबस में, क्योंकि ये वेक्टर आइडेंटिटीज का पार्ट है, वेक्टर आइडेंटिटीज इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। सो क्योंकि इसके लिए फिर से मुझे वो टोटल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो लेट मी स्किप दिस। तो आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, सो यू कैन डिरेक्ट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, ये भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, सो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वैल्यू ऑफ दिस, ये हो सकता है क्या, सॉल्व लिखते हैं। विदाउट वेक्टर आइडेंटिटीज आई नीड टू सॉल्व दिस। So let me try this now. Yeah. So it is equal to triple 503 triple del dot f bar into dv. Okay. So f bar is given. So can anyone tell me the dot product of these two vectors? ये इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे, ये आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। यस, डेल क्या होता है, डेल इज व्हाट, आई इंटू डाबा बाय एक्स प्लस जे इंटू डाबा बाय वाई प्लस के इंटू डाबा बाय जेड, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट एल एक्स इंटू आई बार एम वाई इंटू जे बार एन जेड इंटू के बार। नाउ कैन यू टेल मी dabba x of lx, डाबा बाय एक्स ऑफ एल एक्स प्लस डाबा बाय वाई ऑफ एम वाई प्लस डाबा बाय जेड ऑफ एन जेड। ये इसका मीनिंग वही है, f1 का विद रिस्पेक्ट टू x, f2 का विद रिस्पेक्ट टू y एंड f3 का विद रिस्पेक्ट टू z, सेम लॉजिक है, ठीक है। मैंने बस आपको उसका प्रूफ दिया। सो व्हाट इज दिस, l प्लस m प्लस n, सो व्हाट, डेल डॉट f बार इज दिस, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ, L plus M plus N. हाँ, so L plus M plus N,
ओके तो दिखाई तो दे रहा है कि यही आपका आंसर होगा। अभी मल्टीप्लाई बाय क्या है हमें आपको दिखाता हूँ, वाई बाय दिस इज ए क्यूब। ओके सो हियर so therefore this triple integral del dot f bar dv is equal to over volume v is equal to ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम v, ये वैल्यू हमने अभी क्या कैलकुलेट की है l प्लस m प्लस n dv। नाउ दिस l प्लस m प्लस n दिस इज योर कांस्टेंट दैट यू कैन टेक आउटसाइड टू दिस इंटीग्रल, सो इट बिकम l प्लस m प्लस n ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v dv। ओके इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपल इंटीग्रल, dx dy dz, dv means dx dy dz, so what is triple integral dx dy dz? हाँ बोलो, ये हो गया था आपका पहले ही। व्हाट इज डबल इंटीग्रल dx dy? वॉल्यूम, एरिया, एरिया। ये फंक्शन अगर मैं लेता हूं तो ये वॉल्यूम देता है। इन जनरल डबल इंटीग्रल गिव्स यू वॉल्यूम, कौन, बट इन व्हिच केस व्हेन दिस, यहां पे अगर फंक्शन आता है तो dx dy की जगह पे फंक्शन आता है तो यहां पे 1 आता है तो एरिया होता है। ओके तो ऐसा एक रिजल्ट आपने देखा है क्या? व्हाट इज दिस, अगर फंक्शन 1 आता है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है तो यहाँ पे ये dx dy dz का ही मीनिंग होता है dv, दोज हू डोंट नो। ठीक है तो यहाँ पे आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस। क्या क्या सरफेस गिवन है, ओवर अ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ऑफ लेंथ a, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या वॉल्यूम है क्यूब का, ए क्यूब, a क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है दैट इज a क्यूब। ठीक है तो ये ट्रिक थी इसमें। मैंने आपको पहले बोला कि आपको इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिमिट्स कैलकुलेट करना फिर सॉल्व करना दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें क्यूब फिट होगा, सर्कल फिट होगा, स्क्वायर फिट होगा, जिनके एरिया जिनके वॉल्यूम आपको क्लियरली पता है। ठीक है सर। हाँ बोलो ना। सर ये वॉल्यूम और एरिया कब होता है वो समझा। हाँ ओके, ये आपका मल्टीवेरिएट में ये टॉपिक था ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं पता तो आपको मैं बोलता हूँ। सी शायद उस स्टेटमेंट की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ओके कुछ चीज़ आप याद रखो, डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये इन जनरल होता है वॉल्यूम। आई डोंट थिंक सो अब इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बट जब आप ये फंक्शन 1 लेते हो ना, देन दिस गिव्स यू एरिया। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, उसमें मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। वो आपको पता, हाइट 1 करते हो ना तो वो हाइट ही नहीं आती ना, हाइट ही नहीं आती, वो 3D में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो 2D में ही रहेगा। सो देयरफॉर योर दैट बिकम द एरिया। ओके हाँ, सिमिलरली ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz, ये होता है वॉल्यूम बट इन 4 डिमेंशन। आप बोलोगे कि सर 3 डायमेंशन तक का ही वॉल्यूम आप देख सकते हो, करेक्ट है। उसके आगे आप वॉल्यूम इमेजिन करना है कि वॉल्यूम इन 4 डिमेंशन, ये होता है वॉल्यूम इन 4 डिमेंशन। तो इसमें भी अगर आप एक फंक्शन की वैल्यू 1 लेते हो ना, ये डायमेंशन पीछे लेके जाता है। वॉल्यूम 3 डायमेंशन का है, 1 लेने के बाद वो उसके पीछे का डायमेंशन कौन सा है, एरिया होता है। ये 4 डायमेंशन में जा रहा है अभी, तो अगर आप 1 लेते हो ना, इसके पीछे का वॉल्यूम क्या है, इसके पीछे का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम इन 3 डायमेंशन, दैट इज नथिंग बट जस्ट अ वॉल्यूम। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। इतना बस याद रखो। ओके आई डोंट नीड द प्रॉपर नॉलेज फॉर प्रॉपर नॉलेज टू सॉल्व दिस डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। जस्ट रिमेंबर, ओके जब फंक्शन 1 होता है तब वो डबल इंटीग्रल एरिया देता है और ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम देता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल है, फंक्शन 1 है ना, कुछ नहीं है वहां पे, देयरफॉर इट गिव्स यू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन सरफेस, सरफेस क्यूब था तो उसका वॉल्यूम a क्यूब है। बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। शायद ये सिमिलर रहेंगे आगे के। टू कंप्लीट दिस, या अभी बोलो। ठीक है, इट इज इक्वल टू ट्रिपल ओवर अ वॉल्यूम बी डेल डॉट एफ बार इंटू डी बी। ओके हाँ, यस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय दिस। तो इन प्लेन से सरफेस को बाउंडेड किया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस क्यूब?
1. 1 ना? 1. डन, इतना ही बस यहाँ से समझ में आना चाहिए. ओके, तो डेल डॉट एफ बार कैलकुलेट करो. आप बोल सकते हो डायरेक्टली डेल डॉट एफ बार क्या होता है? F1 का विद रिस्पेक्ट टू x. 4z. F1 का विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? 4z. 4z. F2 का विद रिस्पेक्ट टू y -2y. -2y. F3 का विद रिस्पेक्ट टू z. y. सॉरी, हाँ करेक्ट बोला आपने, y. आई थिंक ये आगे सॉल्व करना होगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 पे. सो आई थिंक उसके, क्योंकि ये 1 आता ना तो आपके लिए इजी होता है ना. अगर ये 1 नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ता है. सो इट इज बेसिकली 4z माइनस y. dv का मीनिंग होता है dx dy dz. ठीक है, सो इट इज बेसिकली 0 to 1 0 to 1 0 to 1 4z माइनस y dx dy dz. ऐसे क्वेश्चन में नहीं देने वाला हूँ आपको, बट स्टिल इसके आगे आप सॉल्व कैसे करोगे? आप सॉल्व कैसे करोगे? 4z माइनस y को किसी भी एक वेरिएबल से पहले इंटीग्रेट करो. लेट मी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z. करेक्ट है? कर सकते हो ना आप ये? यस और नो? Yes. हाँ, 1 ही आने वाला इसका आंसर. ओके, फिर उसके बाद उसको किसी और वेरिएबल से इंटीग्रेट करो और फिर उसको किसी और वेरिएबल से इंटीग्रेट करो. ऐसे करना पड़ता है. थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो आप इसको कर सकते हो आगे. ठीक है, बट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा. ओके, सो एंड देन यू हैव टू कंप्लीट एंड चेक व्हाट इज योर आंसर. हो जाएगा ये आगे? यस और नो? हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, सिंपल है. एक बार ये सॉल्व करो, फिर y से सॉल्व करो, फिर x से सॉल्व करो, चेक करो आंसर क्या आता है. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही है. ये भी क्वेश्चन वही है. यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगे सारे? 0 to 2 0 to 2 सेम फंक्शन रखा है उन्होंने. 0 to 2 0 to 2 0 to 2. करेक्ट ना? इसमें क्या होगा? बस 0 to 2 0 to 2 0 to 2. तो 0 to 2 0 to 2 0 to 2 पे आपको सॉल्व करना है. करेक्ट ना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. हाँ, एंड r bar dot ds bar. Yeah, let me just explain this last question and then we'll stop. Okay. 503 minutes. 503 ला लेक्चर. ओके, सो बस ये एक पार्ट मैं आप पे रखता हूँ. ओके, आप ये कंप्लीट करो. ओके, अदरवाइज मैंने सारे सॉल्व करके ही दिए, बट प्लीज ट्राई दिस. ओके, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Now last question. So it is equal to triple integral over a volume del dot f bar dv. ये easy question है. ठीक है, so it is equal to triple over v del dot f bar आपका r bar है. ठीक है, so now let me calculate this del dot r bar. So del dot r bar is nothing but del dot r bar क्या होता है? x into I bar, y into j bar, z into k bar. Now can you tell me del dot this f bar क्या होता है? f1 का with respect to x क्या है वो? 1 प्लस f2 का with respect to y 1, f3 का with respect to z 1. तो क्या आंसर आ रहा है? 3. So it is equal to 3 times triple integral over v dv. इसका मतलब क्या होता है? अभी ट्रिपल, जस्ट अ ट्रिपल इंटीग्रल फंक्शन बना आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम. सो 3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ v. अभी v क्या गिवन है यहाँ पे? स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 1 रेडियस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4 पाई r. अरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4 पाई R cube. R R cube by क्यूब. 3. ये इन जनरल वॉल्यूम होता है, बट r की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली 4 पाई. कुछ तो रॉन्ग हो गया Sir, ना? by 3. हाँ हाँ सॉरी. Yes, sir. अरे यार ये क्लोज हो गया. सॉरी.
आई डोंट थिंक सो अब ये सेव हुआ है या नहीं है. वो सेव का इरेज हो गया है एंड में जाके. ठीक है, सो बाय 3 आता तो आंसर क्या आ रहा है? 3 कैंसिल हो जाएगा ना. सो विच ऑप्शन इज 4 करेक्ट? pi. Yes. 4 pi. D. समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके ओके, आई विल मैं फिर से वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ इस पीपीटी में. ठीक है, एंड सॉल्यूशन आप चाहो तो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो इफ यू वांट. ठीक है, एंड वहां से आप कंप्लीट करो. इफ पॉसिबल आई विल गिव यू सॉल्यूशन इन डिटेल. ठीक है, मैं देने की कोशिश करता हूँ. Please share that handwritten. यस 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 यस, ये मैं शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली. ओके, एंड दिस इज योर सिलेबस. ठीक है, सो इफ पॉसिबल आई विल कंडक्ट वन मोर लेक्चर बिफोर योर एग्जाम. ठीक है, या जैसे आगे के लेक्चर मिलेंगे वो तो मैं लेने वाला हूँ, बट बिफोर योर फाइनल एंड टर्म एग्जामिनेशन ऑल्सो आई विल कंडक्ट वन मोर लेक्चर. ठीक है, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, और मतलब और क्विकली कैसे उस पूरी 6 यूनिट आप कंप्लीट करोगे. ठीक है, बट चेक क्लासरूम नोटिफिकेशन एवरी टाइम, जिसमें सारे डिटेल्स आपके रहेंगे कि मतलब यूनिट वाइज वेटेज क्या है, सब कुछ एवरी डिटेल यू विल गेट ऑन गूगल क्लासरूम. ठीक है, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, यू कैन शेयर ऑन क्लासरूम, यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली, आप डायरेक्टली कॉल करके भी बोल सकते हो. ठीक है, बट जहाँ पे भी डाउट आता है आप मुझे बोलो, तो आपका उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, एनी डाउट एंड आई विल अपलोड एवरी मटेरियल. ओके, जस्ट गिव मी वन मोर डे. ओके, कल तक मैं सारी चीजें अपलोड कर दूंगा. अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे बोल दो, आई विल अपलोड इट. ओके, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? नो सर. Okay, okay. So here we'll stop today. Okay, I think you don't have your next lecture. There is one meeting in the department, so you will be free now. Thank you all.